கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर का सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रभु की नाम கூடி की महिमा வந்திருக்கிற எல்லாரையும் ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தில் அன்போடு வாழ்த்துகிறோம், வரவேற்கிறோம். यहाँ पर आए हुए सारे सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको आशीष करते हैं। குறிப்பாக கூடி வந்திருக்கிற எல்லா பாஸ்டர்மார்களையும் ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தில் அன்போடு வாழ்த்துகிறோம். खासकर आए हुए सारे सेवकों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। குறிப்பாக அருமையான பஞ்சாயத்து பிரசிடென்ட் பாஸ்டர் அவர்களையும் நாங்கள் வரவேற்கிறோம். पंचायत की जो प्रेसिडेंट है वो भी आज आए हैं, तो उनके लिए भी हम प्रभु के नाम से அது धन्यवाद करते மட்டுமல்ல, டெல்லியிலிருந்து என்னோடு கூட வந்திருக்கிறதான அருமையான பாஸ்டர் டேனியல் அவர்கள் தான் இந்த ஊழியத்தினுடைய மண்டல போதகராக இருக்கிறார்கள். அவர்களையும் பாஸ்டர் ரவி மற்றும் கூட வந்திருக்கிற அருமையான சகோதரனையும் வாழ்த்துகிறேன். हैं। खासकर हमारे साथ आए हुए दिल्ली से जो पास्टर डैनियल हैं, जो यहाँ का जो सेवकाई को देखते हैं, और साथ उनके साथ पास्टर रवि और भाई जो काले भाई हैं, उन सब के लिए मैं धन्यवाद करता அது மாத்திரமல்ல, இங்கே நம்முடைய இந்த கட்டிட வேலையை பொறுப்பெடுத்திருக்கக்கூடிய அருமையான சகோதரன் பேர் சகோதரன் ஆச்சாரியா அவர்களை வாழ்த்துகிறேன். हूँ। खासकर ये भवन बनाने के लिए जो हमारे बीच में जो इंजीनियर है, जो एक आचार्य हैं, वो भी आए हुए हैं, उनके लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद அது करते हैं। மட்டுமல்ல, இங்கே கூடியிருக்கிற எல்லா அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளையும் ஒவ்வொருவரையும் அன்போடு வாழ்த்துகிறேன். खासकर यहाँ पर आए हुए सारे भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। எல்லோரும் ஆண்டவருடைய பார்வையில வெளியேறப்பட்டவர். सभी लोग प्रभु की नज़र में बहुमूल्य हैं। ஆண்டவருடைய பார்வையில பட்சபாதம் என்பது அவருக்கு இல்லை. प्रभु की नज़र में कोई उच्च नीच, कोई भेद विवाद नहीं है। வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னா, நம்ம எல்லாம் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒன்றாயிருக்கிறோம். बाइबल सिखाती है कि हम मसीह में सब एक हैं। ஆமென், आमीन। ஆமென். ஆமென். அதுல ஊழியக்காரங்க, பாஸ்டருங்க, விசுவாசிங்க அப்படிலாம் இல்லை. उसमें प्रभु की नज़र में ये सेवक है, छोटा है, बड़ा है, विश्वासी लोग है करके प्रभु नहीं देखता है। ஆமென். ஆண்டவருடைய ஆண்டவர் கிறிஸ்துவுக்குள் நம்மை ஒன்றாக்கி இருக்கிறார். प्रभु यीशु मसीह ने मसीह में हम सभी को एक बनाया है। அதுல பணக்காரங்க இல்லை, ஏழை இல்லை, या इसमें कोई अमीर और गरीब करके नहीं है। படித்தவங்க இல்லை, படிக்காதவங்க இல்லை, पढ़ा लिखा अनपढ़ करके कोई नहीं है। உயர்ந்தவங்க இல்லை, தாழ்ந்தவங்க இல்லை, बड़े ऊंचे और छोटे करके नहीं है। அதே போல ஊழியக்காரங்க விசுவாசின்னு இல்லை. ऐसे ही सेवक और विश्वासी करके भी परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। எல்லாரும் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒன்றா இருக்கு. सभी लोग मसीह में एक हैं। நீங்க பரலோகத்துக்கு போகும்போது, यदि अगर जब आप स्वर्ग में जाएंगे, அங்க போகும்போது ஊழியக்காரங்களுக்கெல்லாம் தனி இடம், वहाँ आप सेवकों के लिए अलग जगह है। இங்க நம்ம தனி இடத்த வச்சிருக்கோம். यहाँ पर हम अलग अलग जगह बना लेते हैं। அங்க போனோடனே ஊழியக்காரங்களாம் தனியா, விசுவாசிங்க தனி, அப்படி இல்லை. लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद सेवक लोगों का अलग जगह है और विश्वासी लोगों का अलग जगह करके स्वर्ग में नहीं। அங்க மணவாட்டின்னு ஒரு ஸ்தானம் தான் இருக்கு. वहाँ पर दुल्हन करके दुल्हन का एक जगह बना रहे ஒரே हैं। மணவாட்டி தான், केवल एक ही दुल्हन है। அதை பிரிக்க முடியாது. उस दुल्हन को हम अलग नहीं कर सकते। அங்க போகும்போது யார் என்னன்னு தெரியும். वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा कौन क्या है करके। இங்க நம்ம பார்க்கும்போது பெரிய ஊழியக்காரரு, लेकिन धरती पे देखते वक्त हमें ऐसे लगेगा कि ये बहुत बड़ा सेवक है, बहुत लोग சின்ன हैं, ஊழியக்காரரு, या छोटा सेवक है करके दिखाई இவர் देगा। ஒண்ணுத்துக்கு உதவ மாட்டாரு. लेकिन वहाँ जाके हो सकता है ये कोई काम नहीं है। பரலோகத்துக்கு போகும்போது தான் लेकिन प्रभु के हजूर में जाएंगे, அங்க யார் எப்படின்னு தெரியும். वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि कौन क्या है। இங்க நான் வெள்ளை ட்ரெஸ் போட்டிருக்கேன் பாத்தீங்களா, यहाँ पर मुझे देखिएगा मैं सफेद में शर्ट पहना हूँ। அங்க போகும்போது நமக்கு ஒரு வெண்ணங்கி கொடுக்கப்படும். वहाँ स्वर्ग में जाने के बाद हम लोगों को परमेश्वर एक सफेद शर्ट देता है। மணவாட்டியினுடைய வஸ்திரம் என்ன தெரியுமா? दुल्हन का वस्त्र क्या है? வெண்ணங்கி. दुल्हन का वस्त्र सफेद वस्त्र को दिखाता है। வெண்ணங்கி. सफेद वस्त्र है। ஆமென். आमीन। இங்க வெண்ணங்கி தரிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. यहाँ पर धरती पे हम सफेद वस्त्र पहनना आसान है। ஆனா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் தான் வெள்ளை போடுறது. मुझे तो मुश्किल है सफेद पहनना, ஏன்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். क्योंकि सफेद पहनने वाला व्यक्ति उसको बहुत संभालना पड़ता है, सफेद कपड़े को संभालना पड़ता இல்லனா है। வேற ட்ரெஸ் போட்டனா தைரியமா தாராளமா போவேன். कोई भी अगर रंगीन ड्रेस अगर हम पहनते हैं तो हम कहीं पे भी चले जाते हैं, गंदगी नहीं दिखाई देता எங்க है। வைஃப் சொல்லுவாங்க, நீங்க வெள்ளை போடும்போது ஜாக்கிரதையா இருங்க. तो मेरा पत्नी अक्सर ये कहते हैं कि जब भी आप सफेद कपड़ा पहनोगे अपने आप को बहुत संभालना, அழுக்குப்பட்ட उடனே தெரியும். क्योंकि सफेद वस्त्र में जहाँ पर भी थोड़ा सा भी अगर गंदगी लगेगा तो वो दिखाई பரலோகத்துக்கு देता है। போகும்போது அங்கேயும் நமக்கு வெண் வஸ்திரம் கொடுக்கப்படும். स्वर्ग में भी परमेश्वर हमारे लिए सफेद वस्त्र देता அது है। மணவாட்டியினுடைய ஸ்தானம், அதுதான் வெண் வஸ்திரம்.
जो दुल्हन का जो स्थान है वो सफेद वस्त्र को दिखाती அது है। இந்த கையில தைக்கிற வஸ்திரம் இல்ல. वो यहाँ पर यहाँ जो दर्जी जो बनाते हैं ये அது वाला वस्त्र வேதத்துல नहीं है। ரொம்ப தெளிவா சொல்லப்பட்டிருக்கு பரிசுத்தவான்களுடைய நீதி. तो बाइबल में बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि जो सफेद जो वस्त्र है वो संत लोगों का, पवित्र लोगों का धार्मिकता को दिखाता है। பரிசுத்தவான்களுடைய நீதி. संत लोगों का धार्मिकता को दिखाता இந்த है। உலகத்துல इस संसार में நீ எந்த அளவு பரிசுத்தமா இருக்கிறாயோ आप जितना ज्यादा पवित्र होते ही जाएंगे அந்த அளவு उतना ही ज्यादा வஸ்திரம் आपकी वस्त्र பரலோகத்துல और स्वर्ग में வெண்மையா இருக்கும். उतना ही सफेद वस्त्र होगा। என்னவா இருக்கும்? सफेद होगा। कैसे होगा? வெள்ளையா இருக்கும். सफेद होगा। இங்க நான் எப்பவுமே நான் வைட் தான் போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்றதுல பெரிய அர்த்தம் எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல. तो मैं हमेशा सफेद ही पहनता हूँ करके कहना कोई बड़ी बात नहीं है। இங்க வெள்ளை போட்டா கொஞ்சம் நல்லதுதான். हाँ, धरती पे रहते हुए सफेद पहनना अच्छा है, ஆனா அது ரொம்ப காஸ்ட்லி. लेकिन वो काफी महंगा भी है। ஒருவேளை இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் வெள்ளை ட்ரெஸ்ஸுக்கு வசதி இல்லாம हो இருக்கலாம். सकता है आपके पास सफेद पहनने के लिए, हो सकता है आपके पास हाथ बहुत छोटा होगा। வெள்ளை ட்ரெஸ் போடுறது பிரச்சனை இல்ல. सफेद कपड़ा पहनना बड़ी बात அதை नहीं है, சுத்தமா வைக்கிறது தான் பெரிய பிரச்சனை. लेकिन बड़ी बात तो ये है कि उसको संभाल के रखना। அதே போலதான் கிறிஸ்திய ஜீவி. ऐसे ही मसीह का जीवन भी ऐसा ही होता அதே है। போலதான் பரிசுத்தவான்களுடைய வாழ்க்கை இந்த பூமியில. ऐसे ही पवित्र लोगों का, संत लोगों का जीवन भी ऐसा ही நம்முடைய होता है। ஜீவியத்தை நாம் பரிசுத்தமாய் காத்துக்கொள்ளலாம். हम अपनी जीवन को पवित्रताई में संभाल के रखना। கையை உயர்த்தி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோமா? अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद कहिए। அல்லேலூயா हालेलुया, அல்லேலூயா हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। நம்முடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. प्रभु की नाम की महिमा हो। ஆகவே பரலோக ராஜ்யத்திலே इसलिए प्रभु का राज्य में யார் என்னன்னு அங்க போனாதான் தெரியும். कौन क्या है, कैसे है करके स्वर्ग में जाने के बाद पता चलेगा। இந்த உலகத்துல लेकिन इस संसार நீங்க में எந்த அளவாய் பரிசுத்தமா ஜீவிக்கிறீங்கன்றத आप कितना ज्यादा पवित्र जीवन बिताते हैं, அங்க போகும்போதுதான் தெரியும். वो पवित्रताई का जीवन स्वर्ग में जाके पता கையை चलता है। உயர்த்தி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோமா? अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद இந்த करें। பிரயாசம் எல்லாம் அதுக்காக தான். ये अभी हम जितना भी जो प्रयास कर रहे हैं, ये सारा प्रयास स्वर्ग राज्य के लिए। அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய வருகைக்கு ஒரு உத்தம ஜனம் ஆயத்தமாக வேண்டும். परमेश्वर की आगमन के लिए एक पवित्र, एक झुंड, पवित्र संतान तैयार होना चाहिए। கையை உயர்த்தி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோமா? अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। ஆகவே கூடி வந்திருக்கிறவங்க எல்லாரையும் வாழ்த்துகிறோம். इसलिए यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को हम प्रभु का धन्यवाद करते சிறு हैं। பிள்ளைகளை வாழ்த்துகிறோம். छोटी बच्चों को भी हम धन्यवाद करते हैं। நீங்க கூட கவனமா கேட்கணும். अब छोटे बच्चे भी बहुत ध्यान से वचन को सुनना चाहिए। கவனிக்கிறீங்களா? छोटे बच्चे वचन सुनते हैं क्या? கவனிக்கணும். मेरी तरफ देखिएगा, वचन को நீங்க सुनिएगा, தான் இந்த நாட்டினுடைய எதிர்காலம். क्योंकि छोटे बच्चे आने वाला इस जगह का, इस राज्य का भविष्य है। கர்த்தர் உங்களை கரங்கள் எடுப்பார். परमेश्वर आप लोगों को अपने हाथों में कतरन उठाने इस्तेमाल करने वाले பயன்படுத்துவார். हैं। परमेश्वर आप लोग को इस्तेमाल करेंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। வேத புஸ்தகத்திலே बाइबल में மன்னிக்கவும், சரித்திரத்திலே டிஎல் மூடி என்ற ஒரு பெரிய ஊழியக்காரர் இருந்தார். इतिहास में हम डीएल मूडी के नाम से एक बहुत एक अच्छा एक सेवक हम देखते हैं। அவருக்கு படிப்பறிவு இல்லை. वो बड़ा अनपढ़ व्यक्ति था। அவருக்கு சண்டே ஸ்கூல்ல போய் தான் ஆண்டவரை பற்றி அவர் கேள்விப்பட்டார். संडे स्कूल में वो जाने के बाद उसको पता चला कि यीशु कौन है। அல்லேலூயா हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। சண்டே ஸ்கூல்ல போய் தான் ஆண்டவரை பற்றி கேள்விப்பட்டார். संडे स्कूल जाने के कारण वो परमेश्वर को जानने लगा। அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை இயேசுவுக்கு கொடுத்தார். वो अपने जीवन को परमेश्वर के लिए अर्पण किया था। அவருக்கு என்ன வேலை தெரியுமா? उनका काम क्या था? அவருடைய குடும்பம் மிக வறுமைக்குள்ள போயிருந்தது. उसका जो परिवार है बहुत एक गरीब, एक कंगाल वाली ஆகவே அவருடைய स्थान में थे। சின்ன வயசுலயே அவர் வேலை செய்ய வேண்டியதாயிடுச்சு. इसीलिए उन परिवार के लिए, वो अपने परिवार के लिए मेहनत करना पड़ा, काम करना पड़ा। அவர் ஷூ கடையில வேலை செஞ்சார். वो एक जो जूता जो सिलवाते हैं उस दुकान में वो काम करता था। அவருக்கு சரியா பிரசங்கம் பண்ண வராது. उसको सही से प्रचार करना भी नहीं आता था। நம்ம ஊரு பாஷை வந்து இங்க என்ன பாஷை பேசுறீங்க நீங்க? यहाँ कौन सा भाषा बात करते हैं? वागड़ी, வாகினி. அத மாதிரி டிஎல் மூடி வந்து அவர் பேசக்கூடிய பாஷை ஆங்கில பாஷை. इसी तरह जो डीएल मोडी जो है अपनी गांव में वो अंग्रेजी वो बात करता था। ஆமென். आमीन। ஆனா அந்த அவருடைய பாஷை கூட அவருக்கு சரியா பேச வராது. वो अपना खुद का भाषा भी वो अच्छी तरह बोलना नहीं आता था। ஏன்னா அடிப்படை படிப்பு இல்ல அவருக்கு. क्योंकि वो एक बुनियादी जो पढ़ाई जो होता है वो होना चाहिए, वो नहीं था பசங்களை उसका பார்த்து जीवन கேட்க में। போறேன். டிஎல் மூடி என்ன வேலை செஞ்சார் சின்ன अभी வயசுல? मैं आपसे छोटे बच्चों से पूछूंगा कि डीएल मोडी क्या काम करता था? என்ன வேலை செஞ்சார்? क्या काम करता था?
சத்தமா சொல்லுங்க. अभी तो पास्टर जी ने बोला, बोलो, इसलिए सुनना चाहिए था। हाँ? என்ன வேலை काम செஞ்சாரு? काम क्या करता था? जूते की दुकान में काम करता ஷூ கடையில வேலை செஞ்சாரு. था। जूते की दुकान में वो काम करता கரெக்டா था। சொன்னாங்களா? குட் பாய். Very good. अच्छा बैठा है। ஆமே अच्छा बैठा है. ஹalleluya. ஓகே. அப்போ இவரு ஒரு சின்ன கூட்டத்துக்கு போயிருந்தாரு. तो ये जो है एक छोटा सा एक मंडली में दुआ में गया हुआ था। அந்த சின்ன கூட்டத்துல उस छोटी सी प्रार्थना में ஒருத்தர் பேசினாரு. एक व्यक्ति प्रचार कर रहे थे। அது என்ன பேசினார்னா, वो क्या प्रचार कर रहे थे? எந்த ஒரு மனுஷன், कोई भी व्यक्ति, எந்த ஒரு மனுஷன் चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, தன் வாழ்க்கையே தன் வாழ்க்கையை अपनी जीवन को ஆண்டவருக்கு प्रभु के लिए, முழுமையா கொடுக்கறாங்களோ, जो व्यक्ति अपना जीवन को परमेश्वर के लिए पूरी तरीके से अर्पण करते हैं, கரங்களில் எடுத்து ஆண்டவர் பயன்படுத்துவார். उन्हें परमेश्वर अपनी हाथों में लेकर इस्तेमाल करेंगे। இதுவரைக்கும் உலகம் கண்டிராத அளவு आज तक जो संसार ने नहीं देखा, அந்த மனிதனை ஆண்டவர் பயன்படுத்துவார். वो जो संसार ने नहीं देखा, उस व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। கூட்டத்துல ऐसे एक DL முடி उस भवन में वो डीएल मोड़ी वो बात सुन रहा ஒரு था। இளைஞனாக உட்கார்ந்து वो கொண்டிருக்கிறார். एक मात्र एक छोटा सा जवान बनकर वो बैठा हुआ था। அவர் யோசித்தாரு, उसने सोचा, ஐயோ எனக்கு படிப்பு இல்லையே, अब मुझे तो मैं तो अनपढ़ व्यक्ति हूँ, எனக்கு பணம் இல்லையே, मेरे हाथ में ना ही पैसा है, எனக்கு எந்த ஒரு ஆளுமே இல்லையே, मेरे अंदर कोई अधिकार भी नहीं है, பேச்சு திறமை எனக்கு இல்லையே, मुझे बात करने का ढंग भी मुझे नहीं है, मुझे नहीं आता है, यूजलेस फेलो, मैं तो ये बिना किसी काम का नहीं हूँ, किसी काम का नहीं। हालेलुया, हालेलुया। யூஸ்லெஸ் ஃபெலோ நான். मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं என் வாழ்க்கை அந்த ஆண்டவருக்கு கொடுக்க கூடாது. मैं क्यों प्रभु के लिए अपना जीवन को ना दे? என் வாழ்க்கை ஏன் அந்த ஆண்டவருக்கு கொடுக்க मैं கூடாது? क्यों अपना जीवन प्रभु को ना दे? இந்த யூஸ்லெஸ் ஃபெலோவை परमेश्वर इस जो कभी काम ना आने वाला व्यक्ति को முழுமையா கொடுக்க கூடாது. क्यों हम पूरा क्यों ना दे उसको? 50% இல்ல, पूरा 50% नहीं, आधा 75% இல்ல, 50% नहीं है, 70% नहीं இல்ல, है, ना ही 90 है। 100% கொடுக்க கூடாது. क्यों पूरा 100% मतलब परमेश्वर को क्यों ना अर्पण DL करे? மூடி தன் வாழ்க்கையை ऐसे पर डीएल मोडी अपना जीवन को தன்னுடைய இளமையில अपनी जवानीपन में முழுமையாய் अपनी जवानीपन में முழுமையாய் पूरी तरीके से प्रभु का अर्पण किया है, प्रभु को दिया है, கர்த்தருக்கு கொடுத்தார். प्रभु को दिया है। கையை உயர்த்தி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद கர்த்தர் करेगा। அவரை கரங்கள் எடுத்து பயன்படுத்தினார். परमेश्वर ने अपने हाथों को उठाकर उन्हें इस्तेमाल किया। ஒரு முறை முதல் இங்கிலாந்துல एक बार इंग्लैंड में पहली बार லண்டன் பட்டணத்துக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைச்சது. डीएल मोडी को लंदन जाने का एक मौका मिला था। அங்க ஒரு கூட்டத்துல பிரசங்கம் பண்ணார். एक प्रार्थना भवन में वो प्रचार कर रहे அங்க थे। வந்து எல்லாம் படிச்சவங்க வந்தாங்க. वहां पर तो सारे पढ़े लिखे लोग आए हुए थे। அந்த படிச்சவங்க வந்து சொன்னாங்க, वो पढ़े लिखे वे लोग आकर कहते थे, DL முடி डीएल मोडी தயவு செய்து कृपया करके இந்த ஆங்கிலத்தை கொலை பண்ணாதுங்க. इस अंग्रेजी को तुम कत्ल ना कर, தயவு செய்து நீ பேசாத. तो अंग्रेजी में तू बात मत कर। நீங்க கிறிஸ்தவங்களுடைய மதிப்பை கெடுத்துருவ நீ. आप मसीह लोगों का जो नाम को बेकार मतलब मिट्टी में मिला देते हो। ஆங்கிலம் வந்து அப்படியே என்னது உடைஞ்சு போன ஆங்கிலம். आप इतना टूटी फूटी इतने गंदी अंग्रेजी में बात करते हैं, हमें समझ ही नहीं आता है। பிரசங்கம் பண்ணனா பிரசங்கத்தால இந்த மொழிக்கே கேடு. वो अगर इस भाषा में अंग्रेजी भाषा में अगर आप प्रचार करोगे तो इस अंग्रेजी भाषा के लिए बहुत शर्म की बात होगा। அவர் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னார். उस भाई ने एक ही बात कहा, என்னுடைய உடைஞ்சு போன ஆங்கிலம், ये मेरा जो टूटा फूटा जो अंग्रेजी है, உடைஞ்சு போன உள்ளத்தை குணமாக்கும். ये टूटा फूटा अंग्रेजी टूटा फूटा दिलों को चंगा करने वाला अंग्रेजी है। உடைஞ்சு போன உள்ளத்தை குணமாக்கும். हाँ, टूटा फूटा जो टूटे हुए हृदय को चंगा करने वाला भाषा है। மகிமைப்படுத்துவோமா? ऐसे अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। இயேசுவை பத்தி நான் பேசாம இருக்க முடியாது. मैं अपने यीशु के बारे में बताए बगैर मैं रह नहीं सकता। हालेलुया। DL முடிய கரங்கள் எடுத்து பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சார். परमेश्वर डीएल मोडी को अपने हाथों में उठाकर उन्हें इस्तेमाल करने लगा। ஒரு பக்கம் ஐரோப்பா, एक तरफ यूरोप थे, இன்னொரு பக்கம் அமெரிக்கா. दूसरी तरफ अमेरिका थे। இந்த ரெண்டு கண்டத்துக்கும் इस दोनों देशों के बीच में கர்த்தர் ஒரு பெரிய ஊழியக்காரனாய் அவரை எழுப்பினார். इन दोनों देशों के बीच में डीएल मोडी को परमेश्वर बहुत बड़ा सेवक के रूप में प्रभु ने खड़ा किया இங்க था। இருக்கக்கூடிய சின்ன பிள்ளைங்க, यहाँ पर बैठे हुए छोटे छोटे बच्चों के लिए भी आप अपने जीवन को ஏசப்பாவுக்கு உண்மையா கொடுத்தீங்க. यीशु मसीह के लिए पूरी मन से अगर यदि अर्पण करे हैं तो 50-50 கிடையாது. 50% नहीं है,
75-25 கிடையாது. 70-25% नहीं है, 100% पूरे की पूरे 100%. உங்களை ஆண்டவர் கையில் எடுப்பார். अगर आप अर्पण करोगे तो परमेश्वर आपको உங்களையும் इस्तेमाल கர்த்தர் करेगा, பயன்படுத்துவார். परमेश्वर आपको इस्तेमाल ஐயோ करेगा. எத்து தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें. சிறுவர்களை மட்டுமல்ல, यहाँ पर बैठे हुए छोटे बच्चों को முதியவர்களை नहीं, கர்த்தர் பயன்படுத்துவார். बड़े लोगों को भी परमेश्वर ஆண்டவருக்கு इस्तेमाल करने वाले. வயதொரு பிரச்சனை அல்ல. परमेश्वर उम्र को नहीं देखता है. வேதத்துல நீங்க பார்க்கும்போது बाइबल में देखते वक्त உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு மோசையை பத்தி தெரியும்? कितने लोग मूसा के बारे में जानते हैं? मूसा के बारे में कितने लोग जानते हैं बाइबल में? பசங்களுக்கு மோசையை பத்தி தெரியாதா? क्या छोटे बच्चे मूसा के बारे में नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं क्या? नहीं जानते. मोसेस, मूसा के बारे में नहीं जानते हैं? मूसा को नहीं जानते छोटे बच्चे. இஸ்லாமியர்களுக்கு மூசா பத்தி தெரியும். इस्लाम लोगों को भी मूसा के बारे में जानते हैं. உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் மூசா. उनको मूसा बहुत जरूरी है. ஆனா இந்த மோசஸ் யார் தெரியுமா? लेकिन ये मूसा है कौन है? Praise the Lord. Praise the Lord. சின்ன வயசுல छोटा सा बालक, கர்த்தர் அவனை தெரிந்து கொண்டார். छोटा सा बालक में ही परमेश्वर ने मूसा को चुन लिया था. யார் தெரியுமா? कौन है वो? ஒரு அடிமை வீட்டுல பிறந்த பிள்ளை. वो एक दासी का घर पे पैदा हुआ एक छोटा सा बच्चा था. எபிரேய அடிமைகளுடைய வீட்டுல பிறந்த ஒரு பிள்ளை. इब्रानियों का घरों में पैदा हुआ छोटा से एक बालक था वो. அவன் கொல்லப்பட வேண்டியவன். वो सभी लोगों के द्वारा उसको मारा जाना था. ஆனா கர்த்தருடைய கண்கள் அவனை கண்டதினால், लेकिन परमेश्वर की नजर मूसा के ऊपर होने के कारण கர்த்தர் அவனை பாதுகாத்தது மட்டுமல்ல, परमेश्वर केवल उनको बचाया नहीं, எகிப்து நாட்டினுடைய ராஜ அரண்மனையில் வளரக்கூடிய கிருபையை கர்த்தர் அவனுக்கு கொடுத்தார். मिस्र की राजा की उस महल में रहने का, वहां पर राज करने का अधिकार प्रभु ने दिया था. எங்க வளர்ந்தா? कहां पर उसका पालन पोषण हुआ है? முதல் உலக நாடுகளில் உருவான முதல் வல்லரசு நாடு எகிப்து நாடு. इस पूरी संसार में सबसे पहला जो एक बहुत ही एक राज्य, अगर एक पावरफुल राज्य बना है तो वो मिस्र का राज्य होता है. இன்னைக்கு வல்லரசு நாடு எது? உலக நாடுகள். आज का सबसे सामर्थ्य जो देश कौन सा है? சொல்லுங்க. कौन सा है? कौन सा है? कौन सा இன்னைக்கு है? வல்லரசு நாடு எது? आज सबसे ताकतवर देश कौन सा है जो राज्य करता है? அமெரிக்கா अमेरिका ஒரு வல்லரசு நாடு. और இந்தியாவும் ஒரு வல்லரசு நாடா உருவாயிருக்கு. इंडिया भी अभी एक अच्छा एक राज्य करने वाला देश में बदल रहा இந்தியா है. இல்ல. लेकिन इंडिया पहले स्थान पर नहीं है, அமெரிக்கா முதலிடத்துல இருக்கு. लेकिन अमेरिका भी पहले स्थान पर है. ஹalleluya. ஹalleluya. ஆனா வேதாகமத்தின்படி அல்ல, உலக சரித்திரத்தின்படி முதல் வல்லரசு நாடாய் உருவான நாடு எது என்று கேட்டால் அது எகிப்து நாடு. पूरी केवल बाइबल में नहीं, पूरी संसार की इतिहास में अगर देखोगे तो पूरी संसार की इतिहास में सबसे पहला जो देश है, जो एक अच्छा एक देश जो राज्य करने वाला देश जो बन रहा था, वो मिस्र का देश बना था. Praise the Lord. Praise the Lord. அந்த வல்லரசு நாட்டுல वो एक सामर्थ्य पर इस देश में பார்வோன் फिरौन का, அவன்தான் கடவுளே. फिरौन जो है उस देश का राजा था. கடவுள், அவர்தான் கடவுளே. वो भगवान था, मालिक था वो. கடவுளுடைய அவதாரம் அவன்தான் சொல்லுவான். तो लोग बोलते थे कि ये प्रभु का बंदा है करके कहते थे. எல்லாரும் பார்வோனுக்கு பயப்படுவாங்க. सभी लोग फिरौन को देखकर वो डरते थे. அந்த பார்வோனுடைய அரண்மனையில் उस फिरौन की राजमहल में இந்த மோசே ये வளர்ந்தான். छोटा सा बालक मूसा का पालन पोषण हुआ था. இவன் யாரு? ये मूसा कौन है? ஒரு எபிரேய அடிமையினுடைய பிள்ளை. ये मूसा जो है इब्रानियों का एक दासों का एक छोटा सा एक बालक था. ஆனா அந்த அரண்மனையில लेकिन उस राजमहल में ஒரு அடிமையா வளரல. वहां पर एक दास नहीं था, அவன் யாரா வளர்ந்தா वो தெரியுமா? गुलामी नहीं था. वो कैसे पालन पोषण हुआ? இளவரசனாய் वளர்ந்தான். वो एक परमेश्वर का राजकुमारन। एक राजदूत के रूप में वो ஒரு काम कर, இளவரசனாய் एक வளர்ந்தான். राजपुत्र के रूप में वो उसका पालन पोषण हुआ था. ஒரு இளவரசன்னா அவன் மட்டும்தான் அன்னைக்கு அந்த அரண்மனையில ஆண் இளவரசன். वो केवल एक नहीं है, ஆண்கள் அவன் ஒருத்தன் தான் இளவரசன். पूरी पुरुष लोगों में से वही सबसे बड़ा व्यक्ति था वो. இந்த பார்வோனுக்கு நிறைய பிறக்கிறதெல்லாம் பொன் புள்ளதான். फरोन जो राजा है, उस राजा का जितने भी जो बच्चे जो जन्म होते थे सारे लड़कियां जन्म होते थे. வாரிசுல ஒருத்தன் கூட ஆண் பிள்ளை இல்ல. उनका जीवन में कोई भी नर बालक नहीं था, எல்லாமே பெண் பிள்ளைதான். सारे लोग लड़की पैदा होते थे. இந்த லड़कीல தான் இவன் ஒருத்தன் என்னவா இருக்கா? ஆண் பிள்ளை. उनके बीच में से ये मूसा एक
लड़का के रूप में वो वहाँ पालन पोषण होता He is है। the only prince of the Egypt. तो पूरी इजिप्ट का, पूरी मिस्र का वो एक ही கையை உயர்த்தி राजा தேவனை का पुत्र था। மகிமைப்படுத்துவோமா? ஹல்லேலூயா! अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। இளவரசனாய் வளர்ந்தான் அவன். एक राजा का पुत्र होकर वो वहाँ पर उसका இளவரசனா வளர்ந்தது पालन पोषण हुआ। மாத்திரம் இளவரசனா வளர்ந்தது மாத்திரமல்ல, केवल ऐसा ही नहीं, அவன் எகிப்தில் உள்ள எல்லா ஞானத்தையும் கற்று தேறினவனானான். वो मिस्र की हर एक ज्ञान बातों को, वो हर चीजों में अब पाने वाला, वो सीखने वाला बहुत ही एक बहुमूल्य एक व्यक्ति के रूप में उसका पालन पोषण हुआ था। எகிப்தில் உள்ள எல்லா ஞானங்களையும் கற்று தேறினவனானான். मिस्र का सारे ज्ञानों को अच्छी तरह जानने वाला व्यक्ति था वो। புரியுதுங்களா? समझ में आ रहे हैं? முதலாவது என்னவா வளர்ந்தான்? कैसे पहले वो सबसे पहले वो कैसे उसका पालन पोषण हुआ? என்னவா வளர்ந்தான்? कैसे उसका पालन पोषण कैसे हुआ? सबसे पहले இளவரசனாய் வளர்ந்தான். एक राजा का पुत्र के रूप में उसका पालन पोषण हुआ था। அடுத்தது दूसरा, எகிப்தில் உள்ள எல்லா ஞானத்தை கற்று தேறினவனானான். मिस्र के सारे ज्ञानों को जानने वाला व्यक्ति का रूप में उसकी पालन पोषण हुआ அது था। மாத்திரமல்ல, इतना ही नहीं, அவன் ஒரு பலவானாய் இருந்தான். वो इतना ही नहीं, वो एक सामर्थ व्यक्ति भी था। मतलब बलवान भी था। பைபிள்ல சொல்லும் ஒரே அடியில ஒரு ஆளை கொன்னுட்டான். वो बाइबल में लिखा है कि एक ही मार से एक व्यक्ति को खत्म कर दिया था கம்புல उसने। அடிக்கல, वो अपने मतलब डंडा से नहीं मारा था, ஒரே அறதான். एक ही चाटा दिया, एक ही चाटा में व्यक्ति को मार दिया था। எகிப்து விழுந்து சத்தா. वो पूरा उसी वक्त वो व्यक्ति मर गया है। அப்படின்னா நல்ல பலன் இருந்தான். आप तो समझ सकते हैं कि मूसा का जो सामर्थ्य कितना था। वो बलवान व्यक्ति था, शक्तिमान। वो शक्तिमान था, நல்ல சக்திமானா இருந்தான். बहुत बलवान और शक्तिमान था। இப்ப நீங்க சொல்றீங்க முதலாவது सबसे पहले आप ही बोलिएगा, सबसे पहले क्या था? वो அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஸ்லாக்கியம். क्या था? उसके लिए क्या दिया गया था? सबसे पहले प्रिंस, राजा का पुत्र। இரண்டாவது दूसरा, ஆட நீங்க வாயை திறக்க மாட்டேன்றீங்க. बोलिएगा, सारे मिस्र की सारे ज्ञान में और परिपूर्णता था। எகிப்தில் உள்ள ஞானங்கள் எல்லாம் கற்று தேறினான். मिस्र के सारे ज्ञानों को अच्छी तरह जानता था। वो सीखा हुआ व्यक्ति था। அது மட்டுமல்ல, इतना ही नहीं, பலவா वो एक बलवान व्यक्ति भी था। ரொம்ப சக்தி இருந்தது. उसके अंदर बहुत शक्ति था, सामर्थ्य ஆள था। ஒரே அடியில சாவடிக்கிற மாதிரி वो एक चाटा देगा तो एक व्यक्ति उसी वक्त मर जाता था। அவ்வளவு பலன் இருந்தது. उतना उसके अंदर ताकत था। அது மட்டுமல்ல, इतना ही नहीं, அவன் வாக்கில் வல்லவனானான். वो बातचीत करने में, बोलने में बहुत एक सामर्थ्य व्यक्ति भी था। அவன் பேசனான்னா वो अगर वो बात करेगा तो ரோட்ல போற கூட நின்னு கேட்பான். वो सड़क में जाने वाला भी खड़ा होकर सुन के जाएगा। அழகா பேசுவான். उतना अच्छा से वो बात कर रहा உங்க था। ராஜஸ்தான்ல அரசியல்வாதிகள் பேசுறது கேட்டிருக்கீங்களா? राजस्थान में भी जो पॉलिटिक्स लीडर्स वगैरह बात करते हैं, आपने सुना होगा। बात करतेல தான் இருக்கு ஓட்டு. जितना वो बात करते हैं ना, उसी में वोट भी है। நல்லா பேசுவான்னா अच्छा से यदि बात करे तो நிறைய ஓட்ட तो வாரிடலாம். बहुत सारा वोट को ले सकते हैं। அந்த மாதிரி இவன் வாக்கில் வல்லவன். ऐसे एक व्यक्ति था मूसा, जो बातचीत करने में बहुत सामर्थ्य व्यक्ति था। எத்தனை பாயிண்ட் சொன்னேன்? कितना पॉइंट मैंने अभी तक बोला हूँ? எத்தனை பாயிண்ட் சொன்னேன்? कितना बोला हूँ? बोलो, சத்தமா சொல்லுங்களேன். जल्दी बोलिए, मुंह खोल के ஜல்தி बोलिए। போலே. ஹிந்தி மாலும்? हिंदी मालूम है ना? உங்க முகத்தை பார்த்தா யாருக்கு ஹிந்தி மாலும் நஹி போல இருக்கு. என்ன மாதிரி தான் இருக்கீங்க. आपको देखने से ऐसे लगता है कि हमें हिंदी नहीं आता है। मेरा भाषा समझ में आ रहा है? ஓகே. எத்தனை பாயிண்ட் சொன்னேன்? कितना पॉइंट अभी पास्टर जी ने मूसा के बारे में बोला था? அவனுக்கு கிடைச்ச ஸ்லாக்கியம் 4. मूसा को जो मिला गया बहुत ही बहुमूल्य उसका जो मौका था, वो क्या था? நீங்க சொல்லுங்க, அந்த 4 நீங்க சொல்லுங்க. वो चारों बताएगा। सबसे पहले क्या था? वो राजा का पुत्र के रूप में उसका पालन पोषण हुआ था। दूसरा, सारे ज्ञान को जानने वाला, मिस्र की सारे ज्ञान को जानने वाला एक परिपूर्ण व्यक्ति था। तीसरा, वो एक बलवान व्यक्ति था, सामर्थ्य था उनके अंदर। और चौथा ये था, चौथा क्या था? अच्छा से बोलने वाला, बोलने में बहुत सामर्थ्य था वो। எத்தனை நாளாச்சா? 4 पॉइंट हो गया। ஓகே. அடுத்தது अगला, எகிப்தில் உள்ள பொக்கிஷம் எல்லாம் அவன்துதான். मिस्र के जितना भी जो धन दौलत है, मिस्र के जितना भी जो
जो उसका जो प्रॉपर्टी है, जो धन दौलत है, वो सारा उसका था। அன்னைக்கு எகிப்து நாடு எப்படின்னா उन दिनों में मिस्र का देश कैसा था? மற்ற நாடுகள் எல்லாம் ஊர்ல ஊரை உலையில அடிச்சு உலையில போடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா மற்ற ஊரெல்லாம் அடிச்சு உலையில போடுற வேலை தான் அவன் வேலை. मिस्र மற்ற நாடுகள் எல்லாம் उन दिनों में मिस्र ऐसे एक देश था, पूरी देश को, पूरी जगह को कंट्रोल करना और अपने वश में लेने वाला देश के रूप में वो काम कर रहा था। உலக நாடுகளோட பணம் எல்லாம் எங்க வந்து சேரும் தெரியுமா? पूरी देश का, पूरी संसार की सारी जो मनी, सारी जो धन दौलत है, वो कहाँ आकर गिरता है? मिस्र में आके गिरता था। எல்லாம் எங்க தான் வந்து சேரும்? सारा मिस्र में आके गिरता था। எங்க வந்து சேரும்? कहाँ मिस्र में आता था? कहाँ आता था? எகிப்தில வரும். सारा मिस्र में आता था। அந்த பணத்துக்கெல்லாம் அதிபர் அவர்தான். उस सारे धन दौलत का वो एक राजा बनकर वो उसने राज किया था, वो है मूसा। இவர்தான் ஒரு பட்டத்து இளவரசன். क्योंकि ये अकेला एक व्यक्ति था जो एक लड़का के एक प्रिंस था। பொக்கிஷம். इसलिए मिस्र की सारे धन दौलत அதற்கு அதிபர் அவர்தான். उसका देखभाल करने वाला व्यक्ति था ये। அப்படின்னா பெரிய பணக்காரன். तो इसका मतलब मूसा बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति भी था। பொன்னு வெள்ளி எல்லாம் அப்படியே குவியல் குவியலா இருக்கு. पूरा धन दौलत जितना भी, जो चांदी सोना है, जितना भी है, बहुत सारा बड़ा हुआ था उसके पास। பெரிய பணக்காரன். वो बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति இப்ப था। எத்தனை பாயிண்ட் சொன்னேன்? अभी कितना पॉइंट मैंने बोला हूँ? 5. சரி. இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்லலாமா வேண்டாமா? एक और पॉइंट बोलूं या कि नहीं? போலோ. हालेलुया। அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா अगला अगर आप देखोगे, இந்த மோசதான் ये मूसा அடுத்த ராஜா. अगला राजा था। only one पट्टत राजा. फिरो के बाद अगला राजा मूसा बनना था, वो एक ही राजा He था। is supposed to be the next king of Egypt. मूसा फिरो के बाद अगला मिस्र का राजा मूसा बनना था। உயரிய ஸ்தானம். इसका मतलब बहुत ऊंची स्थान उसको मिलने वाला था। बहुत ऊंची ஸ்தானம். बहुत ऊंची स्थान। ஆமென். இன்னைக்கு உலக மக்கள் எதுக்கு பின்னால போறாங்க? आज संसार किसके पीछे भागता है? இதுக்கு பின்னால தான். ये इसी बड़ी ऊंची पद के लिए भागता है। உயரிய ஸ்தானம். ऊंची स्थान के लिए वो भागता है। அடுத்த எகிப்தின் பார்வோ வந்தான். हाँ, अगला मूसा जो है, अगला फिरो मिस्र का अगला जो राजा, वो मूसा बनना था। எத்தனை பாயிண்ட் சொன்னேன்? अभी कितना पॉइंट हो चुका है? 6 पॉइंट। 6ல பெர்ஃபெக்ட் ஆயிருமா? क्या 6 पॉइंट में परफेक्शन हो जाता है? नहीं. परिपूर्ण हो जाता है? नहीं, नहीं। இன்னைக்கு இந்த சே ஆருக்கு செய்தானே அந்த சே பாயிண்ட் இருந்தாலும் நீ ஜீரோ தான். अगर आज ये 6 की 6 पॉइंट अगर आपके जीवन में होगा तो भी आप 0 ही बनोगे। இன்னைக்கு உலகம் வந்து இதுக்கு பின்னால தான் போகுது. ये 6 पॉइंट के पीछे इस संसार भागता है இப்ப आज। நான் சொன்னதுக்கு இந்த 6 பாயிண்ட்க்கு பின்னால தான் உலகம். अभी मैंने जितना भी जो 6 पॉइंट बोला है, यही 6 पॉइंट के लिए पूरी संसार भागता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ஆனா அவனுக்கு ஒரு பாயிண்ட் இல்லாம போச்சு. लेकिन उसके जीवन में एक पॉइंट की कमी था। எல்லாமே தெரியும். सब कुछ आता है उसको, ஆனா लेकिन ஆண்டவரை அறிகிற அறிவு அவனுக்கு இல்லாம लेकिन वो यीशु को, परमेश्वर को जानने का ज्ञान उनके अंदर नहीं ஆனா था। ஒரு நாள் लेकिन एक दिन வேதம் சொல்லுகிறது प्रभु का वचन कहता மோசே है, பெரியவனான பொழுது मूसा जब बड़ा हुआ, பெரியவனான பொழுது मूसा जब बड़ा हो गया, அவன் பார்வோனுடைய குமாரத்தின் மகன் என்று எண்ணப்படுவதை வெறுத்தான். वो फिरौन का राजा, फिरौन का पुत्र करके वो अपने आप को वो घृणित कर रहा था। ஆமென். आमीन। எகிப்தில் உள்ள பாவ சந்தோஷத்தை பார்க்கிலும் தெய்வ ஜனத்தோடு துன்பத்தை அனுபவிப்பதை அவன் தெரிந்து கொண்டான். मिस्र की सारे पापों को, सारी खुशियों को देखने से अच्छा परमेश्वर के लोगों के साथ दुख सहना मेरे लिए भला होगा करके वो उसको चुनने लग गया। எகிப்தில் உள்ள பொக்கிஷத்தை பார்க்கிலும் தேவ ஜனத்தோடு துன்பத்தை அனுபவிப்பதை அவன் தெரிந்து கொண்டான். मिस्र के जो सारे धन दौलत को पाने से अच्छा है परमेश्वर के लोगों के बीच में जो दुख सहना और भी अच्छा होगा। அவன் எகிப்தை விட்டு வெளியே வந்தான். वो मिस्र को छोड़कर वो बाहर निकला। வேண்டாம், मुझे नहीं चाहिए, அவன் வெளியே வந்தான். वो ये मुझे नहीं चाहिए करके सब छोड़कर वो बाहर आ गया। மகிமைப்படுத்துவோம். अपने ஹalleluya. हाथ में उठाकर प्रभु का धन्यवाद। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। அவன் எத்தனை வருஷம் காத்திருக்க வேண்டியது தெரியுமா? कितना साल उसको इंतजार करना पड़ा पता है आपको? 40 साल उसको इंतजार करना पड़ा। Hallelujah. Hallelujah. To have a personal
encounter with God. वो- அப்படினால் தேவனோடு தனிப்பட்ட விதமாய் ஒரு 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 என்ன சொல்றது அதுக்கு என்கவுண்டர் தேவனோடு கூட பல உறவாட இல்லைன்னா தேவனோடு கூட பேசக்கூடிய ஐக்கியம் கொள்ளக்கூடிய அந்த நிலைக்கு வர 40 வருடம் ஆயிற்று. परमेश्वर के साथ मिलकर प्रभु के साथ बातचीत करने, प्रभु के साथ वो कन्वर्सेशन होकर अच्छा से बातचीत करके आगे बढ़ने के लिए मूसा को 40 साल लग गया है. மோசே எகிப்தை விட்டு வெளியே வந்த போது मूसा मिस्र को छोड़कर जब वो बाहर आ रहा था அவனுக்கு 40 வயது. तब उसको मूसा की उम्र 40 साल था. எத்தனை வயசு? कितना साल था? 40 साल का था. ஹோரேப் மலை அருகே வந்த பொழுது जब ओरेब की पहाड़ के पास जब वो आया था, கர்த்தர் குறித்த அந்த மலையின் அருகில் வரும் பொழுது जब प्रभु ने जो जिस पहाड़ को परमेश्वर ने नियुक्त किया उस पहाड़ के पास जब वो मूसा आया, அவனுக்கு 80 வயதாயிற்று. तब मूसा को 80 साल, मूसा का उम्र 80 साल To था. reach the right point where the Lord destined. परमेश्वर ने चुना किया वो सही जगह पर पहुंचने के लिए उसको 40 साल और लग गया. இன்னைக்கு முன்னுடைய வாழ்க்கையில आज हमारे जीवन में भी கர்த்தர் சந்திக்கக்கூடிய அந்த இடத்திற்கு நீ வர வேண்டும். परमेश्वर ने चुना हुआ उस समय पर आने के लिए. மோசேயுடைய வாழ்க்கையிலே जैसे मूसा की जीवन में ஹோரேப் மலை அருகே வந்த பொழுது ओरेब की पहाड़ पर वो मूसा जब वो आने लगा, அவனுக்கு 80 வயது. तब उसका मूसा की उम्र 80 साल का था. கையை உயர்த்தி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करिए. எதற்காக இதை சொல்றேன் தெரியுமா? मैं ये बात में क्यों कह रहा हूँ? ஆண்டவர் இளைஞர்களை மாத்திரமல்ல, केवल परमेश्वर छोटे बच्चों का नहीं, வாலிபர்களை மாத்திரமல்ல, केवल जवान लोगों का नहीं, முதியவர்களையும் கர்த்தர் பயன்படுத்துவார். परमेश्वर बड़े और बुजुर्ग लोगों को भी प्रभु इस्तेमाल கையை करता உயர்த்தி है. தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें. கர்த்தர் நம்மை பயன்படுத்த வல்லவர், परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने में वो सामर्थ्य परमेश्वर है. உபயோகிக்க வல்லவர். वो इस्तेमाल करने में वो सामर्थ्य है. கையை உயர்த்தி தேவனை अपने மகிமைப்படுத்துவோம். हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं. இன்னைக்கு அடிக்கல் நாட்டுறதுக்காக வந்தோம். आज हम कोने का पत्थर रखने के लिए हम आए हैं. நான் அடிக்கலை பத்தி பேசணும்னு நினைச்சேன். मैं कोने का पत्थर के बारे में मैं बात कर रहा था, Praise the बात Lord. करना चाह रहा था. Praise the Lord. Praise the கையை Lord. உயர்த்தி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோமா? अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें. ஒரே ஒரு வசனத்தை வாசிங்க. केवल एक वचन हम पढ़ते हैं, அதை வாசித்து நம்ம முடிக்க போறோம். उस वचन को पढ़कर हम समाप्त करें. செக்கரியா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் जकरिया की किताब, இரண்டாம் அதிகாரம் जकरिया की किताब 2 6 வசனம். 2 का 6 वचन, 2 का 6. हिंदी बाइबल में जल्दी करिए. यहोवा की यह वाणी है, देखो सुनो, उत्तर के देश में से भाग जाओ, क्योंकि मैंने तुमको आकाश की चारों वायु के समान तितर बितर किया है. 2 का 6 पढ़िए. हे बिबिलोन वाली जाति के संग रहने वाली सियोन को बचकर. 2 இல்ல 3 3 का 6, நமக்கு 4 6 तीन का 4 का 6 पढ़िए. 4 का 6. हाँ. तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता. तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा. मुझे सेनाओं के यहोवा का यही वचन है. ஆமென். கையை உயர்த்தி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं. கர்த்தருடைய வார்த்தை प्रभु का वचन முதலாவது सबसे पहले பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, बल से सामर्थ्य नहीं, என்னுடைய ஆவியினால் ஆகும். केवल मेरी आत्मा से होगा. மோசே அதை புரிந்து கொள்ள मूसा इसको जान लिया था. 40 வருஷம் ஆச்சு. इसको मूसा को जानने के लिए 40 साल हो गया மோசே था. நினைச்சான், मूसा सोचा था, என் கையில मेरा हाथ में பணம் இருக்கு, मेरा हाथ में धन दौलत है, செல்வாக்கு இருக்கு, पूरे धन दौलत है, मेरे हाथ में पैसा है, और मुझे बहुत बुद्धिमान व्यक्ति திறமை हूँ. இருக்கு, मैं बात करने वाला व्यक्ति हूँ. என்னிடத்தில் அரசியல் பின்மலம் உண்டு. मेरा पीछे बहुत अच्छा एक पॉलिटिकल रूल्स भी है. யானா लेकिन
கர்த்தர் அவனை தெரிந்து கொள்ளல. लेकिन देखिएगा यहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने नहीं चुना, கர்த்தர் அவனை தெரிந்து கொள்ளவில்லை. प्रभु ने मूसा को नहीं चुना। எப்ப தெரிந்து கொண்டா தெரியுமா? कब परमेश्वर ने मूसा को எப்ப चुना था? தெரிந்து கொண்டா தெரியுமா? कब चुना था? 40 வருஷம் 40 साल के बाद, 40 வருஷம் போன பிறகு 40 साल के बाद இப்ப கர்த்தர் மோசேயை பார்த்து கேட்கிறார். अब परमेश्वर मूसा को देखकर कहता है, மோசே मोहे मोसे கையில என்ன இருக்கு? तेरा हाथ में क्या है? तेरा हाथ में ना पढ़ाई है, ये नारीவெல்லாம் வந்து பூஜ்யமா போச்சு. आज मेरा पूरा வீணா ज्ञान, போச்சு. मेरा सारा ज्ञान व्यर्थ हो गया, सब जीरो में बदल गया है। எகிப்தில் உள்ள ஞானத்தை எல்லாம் கத்து தெரி ஒண்ணும் மண்ணா போச்சு. मिस्र का जितना भी ज्ञान जो मैंने प्राप्त किया था सब कुछ मिट्टी में मिल गया है। எல்லாம் போய்விட்டது. मैं जितना भी जो परिश्रम किया सारा परिश्रम व्यर्थ हो चुका है। அப்புறம் மோசே என்ன வச்சிருக்க? तो मूसा से प्रभु कहता है, तेरा हाथ में क्या है? உனக்கு பேச்சு திறமை இருக்கு. तू तो बहुत अच्छा बोलने वाला நீ व्यक्ति है। பேசும்போது சும்மா ரோட்ல போறவங்க எல்லாம் நிப்பாங்களே. अगर तू बात करेगा तो सड़क में जाने वाले भी रुककर वो तेरी बातों को सुनते थे। இப்ப எப்படி இருக்க? लेकिन अब तू कैसा है? அவ சொல்ல பிடிச்சது. तो वो उसने ये बोलने ஐயோ लगा। நம்ம அந்த நான் திக்கு வாயதல ஒரு வார்த்தை கூட ஒழுங்கா பேச வராது. तब वो मूसा कहता है, प्रभु मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं तो खोखला हूँ, बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord। பணம் पैसा, நிறைய பணம் வச்சிருந்தியே. बहुत सारा पैसा उसके हाथ में था, வெள்ளி பொண்ணு पूरा धन दौलत और सारे चांदी सोना उसके हाथ में था। குவியெல்லாம் வச்சு वो पूरा ऐसे ढेर सारा उसके पास था। இப்போ लेकिन अभी அவ என்ன சொன்னா தெரியுமா? उसने क्या बोला था? என் கையில ஒரு கம்பு மட்டும் தான். उसने बोला, प्रभु मेरा हाथ में मात्र एक ஒரே लाठी ஒரு है, கம்பு மட்டும் தான் இருக்கு. एक लाठी मेरा हाथ என் में கையில है। வேற எதுவுமே இல்ல. मेरा हाथ में आज कुछ என் भी கையில नहीं है, கம்பு மட்டும் தான் இருக்கு. केवल लाठी है मेरा हाथ அது में, மட்டும் தான் பிடிச்சிருக்க. मैं वही मैं आज வேற पकड़ा हूँ। எதுவுமே இல்ல. आज मेरा हाथ में வேற कुछ भी எதுவுமே नहीं है, இல்ல. मेरा हाथ में कुछ भी என் नहीं கையில है, ஒண்ணுமே இல்ல. मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, இது மட்டும் தான் இருக்கு. केवल मेरा हाथ में लाठी है। சொல்லுங்க. क्या है? लाठी। ஆண்டவர் சொன்னாரு, प्रभु ने कहा, அதை ஏன் பிடிச்சிட்டு இருக்க? उसको तुम क्यों हाथ में क्यों लेके क्यों खड़े हो? கீழே போடுங்க. उसको भी तो नीचे डाल அதை दे। மட்டும் பாருங்க, ஒரு கம்பு இருக்கு பாருங்க. मान लीजिएगा एक डंडा है, ये लाठी எல்லாம் है। போச்சு, இது மட்டும் தான் என்ன காப்பாத்த போகுது. मूसा कहता है कि मात्र मेरा बस यही है, यही मुझे बचाएगा, இது மட்டும் தான் என் கையில இருக்கு. यही मेरा हाथ में है। என்னுடைய ராஜ பதவி போச்சு. என்னுடைய இளவரச பட்டம் போச்சு. राज में फिरौन का पुत्र होने का वो पद मेरा जीवन से हट गया है। என்னுடைய பணம் போச்சு. मेरा पैसा खत्म हो என் चुका है, படிப்புலாம் மண்ணா போச்சு. मेरा पढ़ाई सब मिट्टी में मिल चुका है, எல்லாமே போச்சு. सब कुछ मेरा जीवन से नष्ट हो चुका है। கையில இருக்கிறது கொம்பு மட்டும் தான், मेरा हाथ தடி में- மட்டும் தான் இருக்கு. मेरे हाथ में मात्र ये लाठी है। ஆண்டவர் சொன்னா அதையும் கீழே போட்டு. प्रभु ने बोला उसको भी तू नीचे डाल दे। அது போட்டா அது என்னாச்சு? பாம்பாச்சு. जैसे उस लाठी को नीचे डाला वो सांप के रूप में बदल गया। மோசே அதை விட்டு ஓடுறா. मूसा उसको छोड़कर भाग रहा ஆனா था, கத்த சொன்னாரு, तो प्रभु ने उससे அந்த कहा, கம்பு அந்த அதனுடைய வாலை பிடிக்க சொன்னாரு. प्रभु ने बोला इस सांप की पूंछ को तू அது पकड़। வாலை பிடிச்சோட கோலாச்சு. वो जैसे वो उस पूंछ को पकड़कर उठाया तो दोबारा वो लाठी में बदल இப்போ இது गया था। சாதாரண கோல் அல்ல. अब ये जो लाठी है एक साधारण लाठी नहीं है, இது சாதாரண லாட்டி நஹி. ये एक साधारण लाठी नहीं है, இது தேவனுடைய கோலாச்சு. ये प्रभु का लाठी கையை உயர்த்தி है। தேவனை மகிமைப்படுத்துங்க. प्रभु अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। ஹalleluya. हालेलुया। இது போதும். ये केवल ये लाठी काफी இது है, போதும். ये काफी है मेरे உன் लिए। ஞானம் வேண்டாம். मुझे कुछ नहीं உன் चाहिए, பட்டம் வேண்டாம். तेरा पढ़ाई உன் नहीं படிப்பு चाहिए, வேண்டாம். तेरी पढ़ाई உன் नहीं வாக்கு चाहिए, திறமை வேண்டாம். तेरा बोलने का सामर्थ्य नहीं चाहिए, கர்த்தருடைய கோல். केवल मात्र परमेश्वर की लाठी இதை काफी है। எடுத்துக்கொண்டு நீ எகிப்துக்கு போ. इस लाठी को लेकर तुम मिस्र உன்னை में நான் जाओ। கைகளில் எடுத்து பயன்படுத்த போறேன். तुम्हें अपने हाथों में लेकर मैं इस्तेमाल உன்னை करने वाला கரங்களில் हूँ। எடுத்து பயன்படுத்த போறேன். मैं तुम्हें अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल இதுவரைக்கும் करने वाला உலகம் हूँ। கண்டிராத அளவு अब तक जो संसार ने नहीं देखा உன்னை है, நான் பயன்படுத்த போகிறேன். ऐसे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने பார்வோன் ராஜாவுக்கு முன்னால फिरौन की उस राजा के सामने நான் உன்னை ஆண்டவனா மாற்ற போறேன். मैं तुम्हें उस परमेश्वर के रूप में तेरे को கையை बदलूंगा। தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்துங்க. आप अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। விதமாய் இங்க உள்ள ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் பயன்படுத்த முடியும். ऐसे इसी प्रकार हर एक लोगों को प्रभु इस्तेमाल करने वाले இளைஞர்களை हैं। பயன்படுத்த முடியும். परमेश्वर छोटे बच्चों को इस्तेमाल करने वाले வாலிபரை हैं, பயன்படுத்த முடியும். बच्चे को प्रभु इस्तेमाल करने वाले हैं, முதியவர்களை பயன்படுத்த முடியும். बुजुर्ग लोगों को प्रभु इस्तेमाल கர்த்தருடைய करने वाले கரத்தில் हैं। உன்னை ஒப்பு கொடுப்பாயாடா. यदि तू प्रभु की अपने हाथों में अर्पण करे, அல்ல
பலத்தினால் அல்ல, सामर्थ से नहीं, பராக்கிரமமும் அல்ல, सामर्थ और बल से नहीं, தேவனுடைய ஆவியினால் ஆகும். केवल एक ही आत्मा से. இங்க கூட இந்த வேலை ஊழியத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கோம். यहाँ पर भी जो सेवा जो हमने जो शुरू किया है, பலத்தினால் அல்ல, ये हमारी बल से नहीं है, பராக்கிரமத்தினால் அல்ல, हमारी सामर्थ से नहीं தேவனுடைய है, ஆவியினால் ஆகும். प्रभु की आत्मा से என்னை होगा. பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால் मुझे बल देने वाला, सामर्थ எனக்கு देने वाला मसीह के எல்லாவற்றை द्वारा செய்ய பலன் உண்டு. सब कुछ करने के लिए தேவனை मुझे மகிமைப்படுத்துங்க, ताकत है, தேவனை सामर्थ है. மகிமைப்படுத்துங்க. अपनी हाथ கர்த்தர் तारीफ பெரிய करके காரியங்களை செய்ய போகிறார். परमेश्वर बड़े काम करने वाले हैं. பெரிய பர்வதமே, ये बड़े பெரிய பர்வதமே, ये बड़े நீ पहाड़ செருபாபேலுக்கு முன்பாக எம்மாத்திரம் तू सेरुब्बाबेल के सामने तू कहा क्या है? தரை மட்டமாக்கப்படுவாய், तू यहाँ पर गिरा जाएगा, தரை மட்டமாக்கப்படுவாய். सब कुछ गिरा जाएगा. ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. ஹalleluya. தலை கல்லை கொண்டு வருவாய், वो एक कोने का पत्थर लेके आएगा. அதற்கு கிருபை உண்டாவதாக என்று முழங்க கடவது. वो संसार बोलेगा कि उस कोने के पत्थर के ऊपर प्रभु की अनुग्रह रहेगा. ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோன் இருக்குங்க, देखिएगा यहाँ पर हम कोने का पत्थर के बारे में देखते हैं. அந்த ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோன் வேற யாரும் அல்ல, वो कोने का पत्थर और कोई नहीं है, அது கர்த்தராகிய இயேசு वो கிறிஸ்து. प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है. இந்த பரிசுத்த வேதம் சொல்லுது, ये पवित्र बाइबल कहता है மனுஷரா தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதும், प्रभु की ओर से जो चुना गया, தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதும், प्रभु की ओर से जो चुना गया है, மனுஷரால் தள்ளப்பட்டதும், जो इंसान की ओर से जो மனுஷரால் इनकार किया, தள்ளப்பட்டதும், इंसान की ओर से जो इनकार किया, தேவனால் தெரிந்து की கொள்ளப்பட்டதும், ओर से चुना गया, மனுஷரால் தள்ளப்பட்டதும், इंसान की द्वारा விலையேறப்பட்டதும், ऐसे एक बहुमूल्य पत्थर, மகபூலிய பத்தர். ऐसे ஹalleluya, बहुमूल्य पत्थर, ஹalleluya. ஹalleluya. திடாஸ்திபாரமுள்ள ஒரு கல், बहुत ही जो सामर्थ जो पत्थर है, திடாஸ்திபாரமுள்ள ஒரு கல், कोई भी उसको हिला ना सके, ऐसे एक सामर्थ बड़ा இதோ पत्थर. சியோனில் வைக்கிறேன், देख ये मैं सियोन में रखता हूँ, சியோனில் வைக்கிறேன். देख मैं इसको सियोन में रखता हूँ. ஹalleluya, हालेलुया. அதை விசுவாசிக்கிறவன் பதறான். जो उस पर विश्वास करता கையை है தட்டி वो தேவனை कभी மகிமைப்படுத்து. डरेगा नहीं. அதை விசுவாசிக்கிறவன் பதறான். जो उसको विश्वास करने वाले व्यक्ति ஹalleluya, हालेलुया. ஹalleluya. மனுஷ தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டது, प्रभु की ओर से चुना गया पत्थर है, மனுஷரால் தள்ளப்பட்டது, सारे इंसान की ओर से उसको इनकार किया हुआ पत्थर है. பரீட்சிக்கப்பட்டதும், वो हर एक चीजों से वो விலையேறப்பட்டதும், और बहुमूल्य पत्थर है. वो திடாஸ்திபாரமுள்ள ஒரு கல். कोई उसको हिला ना सके, एक मजबूत पत्थर है वो. சொல்லுங்க, திடாஸ்திபாரமுள்ள ஒரு கல். बोलिएगा जो कोई ना हिला सके, ऐसे एक ஓ, मजबूत पत्थर, சியோனில் வைக்கிறேன். उसको सियोन में रखा जाता है. அதை விசுவாசிக்கிறவன் उस पत्थर के ऊपर जो विश्वास करेगा வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, वो कभी लज्जित नहीं நீ होगा. வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, तुम लज्जित नहीं होगे, வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. तुम लज्जित नहीं होगे. விசுவாசிப்பாயானால் यदि तुम विश्वास நீ करो, வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, यदि तुम विश्वास करो, நீ तुम வெட்கப்பட்டு लज्जित போவதில்லை. लज्जित नहीं होगे. ஹalleluya. கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். अपनी आंखें बंद करिए, हम प्रार्थना करते हैं.